Jai Guruji, with Guruji's grace, रूहानी जस्तजू is 15 today. एक ऐसी तलाश जो रूह से रूह तक जाए। नमस्कार, आप सबका दिल से स्वागत है रूहानी जस्तजू के 15वें एपिसोड में। एक सफर जो रूहानियत, प्रेम और गुरु कृपा के नूर से रोशन है। आज हम फिर एक नए मोड़ पर हैं, एक और पैगाम, एक और कहानी, एक और रूहानी दास्तान लेकर। पिछले 14 एपिसोड्स में हमने अनेक रूहों को छूने वाली अनुभवों का सहारा लिया, गुरु के चरणों में झुककर उनके आशीर्वाद से अपनी जुस्तजू को और गहरा बनाया। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मेहमान के साथ हैं जिनकी जिंदगी के रास्ते गुरु के साथ उनके रिश्ते और उनके स्पिरिचुअल सफर में हमें एक नई रोशनी की तरफ लेकर जाएंगे। तो दिल थाम लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, चाय का कप ले लीजिए और तैयार हो जाएं एक और मुलाकात के लिए रूहानी जस्तजू के इस खास और प्यारे पड़ाव पर। Welcome, Kiran Auntie. Kiran Auntie has been Sahib's driver, PA, cook, all in one. So, Auntie, are you ready to share your treasure box with us today? Welcome. Welcome. Yeah, I'm ready. Jai Guruji, everybody. And Shukrana, Guruji. Shukrana for giving me this opportunity to be on this platform. Thank you, Aarti Auntie, and thank you, everybody. So, Auntie, uh, हमें सारा बताइए, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी साहिब के साथ, and what was that moment which was transformative for you towards Guruji? see, Aarti, it was somewhere in early 95. Now, I don't remember the exact month or date because all I can assume is that it was April because the school sessions had just started. हाँ जी, So, my children, they were very small, of course. Now it's almost 30 years. It's 25, and I'm talking back about जी, 30 years, like 95. जी, So I was about, you can say, in late 30s, जी, and my children were just teenager. Not the younger one was not even a teenager. जी, So they were very small. They were school going. हाँ जी, Mm, the first time when I met Guruji, it was to oblige somebody. Not that, let me be very honest, जी, because with Guruji, you can't cheat him. You can't cheat बिल्कुल, Guruji's Sangat also. yes, My friend, Kamal from Chandigarh, she used to go to meet Guruji along जी, with Colonel, I don't remember his name. They were few दूर, friends. They used to go to meet Guruji in Colonel Toor Jalandhar probably, from Chandigarh. हाँ That जी, हाँ time I was in Chandigarh. Now I am in Delhi. जी, 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 There is a satsang behind this also. Whenever they used to go and meet Guruji, he used to say, bring Kiran auntie, bring Sood auntie, in fact. जी, So they used to say कि आपके हमको आपके नहीं हमारे गुरुजी आपको बुला रहे हैं. तो आई हम्म, टू से कि मेरे को क्यों बुला रहे हैं. हम्म, जब मैं उनको कभी मिली नहीं, मैं उनको जानती नहीं, वो मेरे को जानते नहीं, वो मेरे को क्यों बुला रहे हैं. ये हमारी नालायकी थी. वी वर वेरी नेव. वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गुरुजी. वी नेवर correct, न्यू दैट गॉड incarnate is there on earth. He knew everybody, he could see everybody. ये correct, हमको बाद में पता चला. चलो, जस्ट टू oblige माय फ्रेंड्स, आई जी, सेड कि चलो एक बार चले जाते हैं, कोई बात नहीं. उनको जी, बैठने ही नहीं देते थे. राइट. तो जब मैं और मेरे हस्बैंड गए, तो हम हमारे लिए तो इट वाज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज जी, देयर वाज नथिंग guru like, a baba like, a very young, handsome, I yes, mean, yes, gentleman was sitting on a chair, yes, and or very few sangat were sitting on the floor, and we didn't even know कि इनको मत्था टेकना है. I जी, just said namaste and बैठ हम्म, गए, मैं और मेरे हस्बैंड. right, थोड़ी देर के बाद ही कॉल्ड मी लाइक हिज नॉर्मल बुलाने का जो स्टाइल एवरीबॉडी नोज.
उन्होंने बुलाया और अपनी गद्दी के इधर राइट लेफ्ट हमको बिठा दिया. हम्म, Then that started, चाय लाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ. So it went on. I think so. When we reached, it was around maybe 2:30, 2 o'clock. By till 8 o'clock, it was like हम खा रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे. समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है. So it was very surprising because मैं जमीन पे बैठ नहीं सकती थी. When हम्म, my son, the second issue was born, so I had developed that arthritis in my body, maybe some calcium deficiency, maybe I don't know. तो right, जब मैंने देखा कि 2 बजे की मैं बैठी हुई हूँ और 8 बज गए एक ही जगह, द सेम हम्म, प्लेस, ओनली ईटिंग ड्रिंकिंग. तो इट हम्म, जस्ट अंदर कुछ जैसे लगा कि देर इज जी, समथिंग हियर. क्या जी, है, नहीं जी, समझ आई. right. फिर उसके बाद शुड आई टेल यू अ फ्यू मोर थिंग्स ऑन माय फर्स्ट मीटिंग? Absolute, apps, everything, auntie. ओके, ओके. सो जब 8 बज गए तो फिर मेरे को थोड़ा इट स्ट्रक कि कुछ तो जी, है, पर क्या है नहीं समझ आइडिया, नहीं कुछ आइडिया नहीं है। हुआ. फिर क्या हुआ, हाँ, देर वाज वेरी स्ट्रेंज थिंग, व्हेन आई एंटर्ड जलंधर मंदिर. तो गुरुजी सेड के आ गई मायर आंटी. माय नेम इज किरण सूद, एवरीबडी नोज आई एम किरण सूद आंटी. Right. बट वो तो जानी जान, सब कुछ जानने वाले. उन्होंने मेरे को बुलाया कि आ गई मायर आंटी. मतलब हम्म, लाइक ही वाज वेलकमिंग मी, और ही वाज वेटिंग फॉर मी. रूह हम्म, से रूह का मिलन ही होने जा रहा था, मैं इसको यही जी, बोलूंगी. जी, तो हम चुप करके बैठ गए. उसके बाद रात के 1 1:30 बजे उन्होंने, हमको ये तो समझ आ गई कि वो सबको अंकल आंटी एड्रेस करते हैं. इतना हम्म, तो बैठने के बाद पता लग गया कि वी आर नॉट द ओनली वन टू बी कॉल्ड आंटी और दिस थिंग. वो right. सबको, लेडीज को आंटी और अंकल बोलते थे. हम्म, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी को हमने एक बार पूछा था कि ये अंकल आंटी क्या है. हाँ जी, हाँ जी, ये भी मैं आपको बताऊंगी. मे बी ये दिस इज फर्स्ट जो कम्युनिकेशन मेरी और गुरुजी की होती रही, मैं खाली उसी की बात करूंगी. बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है. हाँ जी, तो जब हम 1 1:30 बजे हमको छुट्टी मिला, हमको ये समझ आ गई थी जिसको छुट्टी देते हैं वही उठ के जाता है, अपने आप नहीं जा रहे थे. तो हम भी जी, बैठे रहे. जी, उसके बाद जब 1 1:30 बजे मैं कार में बैठी तो फर्स्ट थिंग आई आस्क माय हस्बैंड कि ये तो ठीक है, सबको अंकल आंटी बोलते हैं गुरुजी, बट हम्म, ये मायर क्या है. हम्म, देन ही इज टेलिंग मी आफ्टर आई थिंक सो 13 14 years ऑफ मैरिज कि हम मायर्स हैं, हमारा जो सरनेम है वो मायर है. oh my माय God, गॉड, दैट वाज अनदर शॉक टू मी कि मायर yeah, कैसे है, हम तो सूद है. ही से हाँ, नहीं नहीं, वेरी कैजुअली इज टेलिंग मी इन द कार, नहीं नहीं तेरे को नहीं पता, हम लोग सूद है, बट हमारा एक जो गोत्र होता है, व्हाट इज गोत्र. हाँ, yes, 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 गोत्र yes, एक कास्ट के अंदर सब कास्ट होती है. right, तो right, वी right, आर सूद, बट हमारा जो गोत्र है ना वो मायर है. माय okay, गॉड, फिर तो मेरा दिमाग ही घूम गया. मैं कहा मेरे को नहीं पता, मेरे हाँ, हस्बैंड का गोत्र ये है, गुरुजी को कैसे पता. right, चलो कोई बात नहीं, वो भी हो गया. हम्म, उसके बाद ही सेड के परसों आ जाओ, 2 दिन के बाद आ जाओ, लाइक सिलसिला शुरू हो गया हम्म, गुरुजी को. फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर, इट यूज टू टेक आई थिंक सो 2.5 hour और सम टाइम 3 hours हम्म, जाने के लिए और 3 hours आने के लिए. और वहां पर तो वो रात बिठाते थे और 12 1 बजे छुट्टी देते थे, 3 4 बजे घर पहुंचते थे. हम्म, अब जब ये हुआ कि ये इनको तो हमारा पास्ट मालूम है, इनको तो हमारी हिरार्की मालूम है कि हम हम्म, किस उससे क्लैन से आए हैं. फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने ये कहना शुरू किया कि आप अपना सरनेम मायर लगाओ, हम्म, सूद हटा दो. मेरे अच्छा, पास कुछ पिक्चर्स हैं, पता नहीं, आई डोंट नो इस प्लेटफॉर्म पे इट वोंट बी पॉसिबल टू शो, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है सूद हम्म, फैमिली फुल ब्लेसिंग, नहीं, सूद देन कट करा हुआ है, क्रॉस मारा हुआ है, अच्छा, मायर अच्छा, फैमिली फुल ब्लेसिंग्स. आंटी वो आप सारी पिक्चर्स शेयर करना, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट विल डू अ स्लाइड शो ऑफ ऑल द पिक्चर्स. चलो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ हाँ पिक्चर्स करके आपको दिखाऊं. यू कैन वेरी क्लियरली सी सूद जी, या, क्रॉस मायर फैमिली फुल ब्लेसिंग्स. फिर एंड उसका हिज हुआ हैंडराइटिंग कि वाज सो ब्यूटीफुल,
गुरुजी की His writing, I इतनी have प्यारी। so many pictures with यस, his handwriting. यस, जो उसके ऊपर सूद फुल, नहीं सूद को तो ही टू नेवर लाइक, आई टेल यू। या, सूद नाम उनको पसंद ही नहीं था। तो या, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि आप ना अपना सरनेम मायर कर लो। तो मैंने अच्छा, कहा गुरुजी ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पासपोर्ट्स बने हुए हैं, कंपनी है, देन वीजाज लगे हुए हैं, तो ये तो बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो जाएगा। या, देन सेड कि अपने बेटे का नाम मायर कर दो। अच्छा, तो फिर हमारा बेटा 8th में था जब वो 9th में आया दिल्ली में, हमको दिल्ली जब शिफ्ट किया, तो हमने उसका सरनेम मायर कर दिया। नाउ ही इज सिद्धार्थ मायर। ओके, द होल मायर क्लैन इज देयर बैक अगेन, यू नो। अच्छा, राइट, 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 ब्यूटीफुल, सिद्धार्थ मायर, सान्या मायर, उसके बच्चे भी मायर, एवरीबॉडी नाउ इज मायर इन आवर फैमिली। ये ओके, गुरुजी ने हमको दिया। अच्छा, अब और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी ये हाँ जो जी, मायर का कैसे मतलब हुआ, उनको कैसे, कहाँ उन्होंने मेरे को ये चीज पिक करा, मायर कहाँ से किया। शुड आई टेल यू ये थोड़ा सा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल, अच्छा, ये दिस थिंग हैपेंड इन, गुरुजी पंचकूला आ गए, जलंधर से पंचकूला आ गए, हम्म, राइट। तो हम्म, पंचकूला में बड़ी थोड़ी सी संगत होती थी, एंड आई टू बी वन ऑफ दोज जो चाय बना के सर्व करते थे। मेरी या, बेटी चाय बनाती थी, मैं सर्व करती थी, बर्तन करते थे, मतलब सारा थोड़ा थोड़ा जैसे हम्म, संगत की सेवा के लिए गुरुजी ने जी, लगा जी, दिया। जी, अब क्या होता था कि जब पूरा हॉल पंचकूला वाला फुल हो जाता था तो उनके बाहर थोड़ी सी जगह थी। हम भी जब देखा कि एक लॉट पूरा हो गया चाय का, तो मैं भी थोड़ी देर बाद जाके बैठ जाना कि अब कोई आएगा तो चाय देंगे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो एक जेंटलमैन वहां आया करते थे, अब मेरे को उनका नाम भी याद नहीं है, शक्ल भी याद नहीं है, बट आई नो कि ही इज टू बी देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, रोज आता था और बाहर ही बैठता था। तो हम्म, जब मैंने बैठना तो उसने मेरे को बोलना, एक क्वेश्चन इज टू आस्क मी, आप कब से आ रहे हो गुरुजी को मिलने, और हम्म, आपका कुछ हुआ? ये अच्छा, दो क्वेश्चन वो पूछता था। वेरी फनी, यू नो। अब हमको लग रहा फनी, पर उस टाइम इट वाज वेरी नेचुरल, यू नो। अब कोई राइट, राइट, आदमी आ रहा है और या, मेरे को रोज देख रहा है कि मैं सेवा कर रही हूँ गुरुजी के आसपास, गुरुजी की चाय, संगत की चाय, इधर उधर जो भी, तो उसको लगे कि चलो शी इज द राइट पर्सन टू आस्क। या, कहता हर रोज उसने दूसरे तीसरे बार जब पूछा ना कि आप कब से आ रहे हो और आपका कुछ हुआ, तो मेरे को समझ नहीं आती थी मैं क्या जवाब दूं, बिकॉज हम लोग इतना सोचते ही नहीं थे करेक्ट, कि करेक्ट, या, मतलब कब से आ रहे हैं और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिमाग तो गुरुजी ने बंद किए हुए थे हमारे। वी वर या, जस्ट लाइक पपेट्स, पपेट्स की तरह घूम रहे थे, वो नचा रहे थे, हम नाच रहे थे। वो तो आज भी है ना। I was just gonna say that वो तो आज भी चल रहा वो है। तो आज भी चल रहा है। अब क्या हुआ कि जब 3 4 बार उसने पूछा, तो एक दिन जब गुरुजी संगत से मतलब फ्री हो जाते थे, तो वो ना फिर अपने कैजुअल उसमें आ जाते थे रूप में। तो फिर मैंने उनको बोला गुरुजी वो जो फलां फलां बंदा है ना, वो मेरे को ऐसे पूछ रहा था कि आप कब से आ रहे हो और आपका कुछ हुआ। तो वेरी कैजुअली इज टेलिंग मी कि उसको उन्होंने कह दी 300 साल तो आ रही हैं। दिस इज समथिंग वेरी फनी, यू नो, कि Oh उन्होंने my कह दी God. 300 साल तो आ रही हैं। हम्म, उस टाइम तो देखो, ये 95 96 की बात है। मेरे को ना लगा कि गुरुजी मेरे को ना मतलब टालने के लिए नहीं होता, जैसे बोल दिया। मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा मैं तो बोलूंगी तो वो कहेगा वाह भैया, तू तो, वो गुरुजी को उतारो, इनको बैठा दो गद्दी पे, ये 300 साल पुरानी हाँ, लेडी है। तो सही आई सही जस्ट बात केप्ट है। क्वाइट। या, अब इसका जो लिंक मेरे को बड़े सालों के बाद पता लगा कि जब पहली बार मेरे को गुरुजी ने मायर आंटी बोला था, तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बताया कि जो मेरे फोर फादर्स थे, मेरे ग्रैंड फादर के फादर, पता नहीं कहाँ कहाँ की वो बातें कर रहे थे, मेरे को अब याद नहीं, वो ना मायर लिखते थे, मतलब हम्म, वो मायर ही लिखते थे। अच्छा, तो मायर लिखते थे, तो दैट मीन्स कि मैं इस परिवार के साथ तब से जुड़ी हुई हूँ। जी, मैं जी, मायर हूँ, जो गुरुजी ने अब मेरे को बोला, तो मैं उस परिवार के साथ 300 साल से जुड़ी हुई हूँ। और गुरुजी के साथ भी उन्होंने जो मेरे को बताया 300 साल, दैट मीन्स कि ये तब की बात कर रहे हैं। यू wow, अंडरस्टूड? absolutely, so deep. So auntie, tell me that first meeting में, how did you and uncle exchange notes? I'm talking about perception. Like you talked about your impressions. How did uncle react to this entire thing?
अंकल का ऐसे था बेटा जी, अंकल ना बिल्कुल ही मस्त मौला आदमी है, वो आज भी हैं। तो उन्होंने कोई बात भी नहीं करी, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पुट किया कि ये हाँ, मायर क्या है, तो उन्होंने बड़ा बड़ा कैजुअली बोल दिया कि अच्छा स्पेसिफिकली, हम माहिर हैं। हाँ, कि हम मायर हैं। मेरे हाँ, दादाजी के फादर मायर लिखते थे, उनकी मायर होजरी भी होती थी, ये था। अच्छा वो ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑल, उसको कुछ, उनको कुछ भी नहीं लगा। अच्छा तो अच्छा। पता नहीं, अरे गुरुजी वो मेरे साथ ही जाते रहे, बैठते रहे, सब कुछ। हम्म, पर कभी नहीं मेरे को लगा कि ना उन्होंने मेरे को कभी मना किया, ना उन्होंने किसी चीज से ऑब्जेक्ट किया। जैसे मेरा दिमाग गुरुजी ने बंद किया हुआ था, उनकी जुबान बंद करी हुई थी। तो नहीं तो आई लव सच्ची दैट। बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ कि हम लोग गुरुजी के साथ रात को पूरी पूरी रात कमरे में रहते थे, और उनको या कहते थे तू जा अंकल, तू सवेरे ऑफिस जाना है ना, या ਬੱਚਿਆਂ या ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ है, तू ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ जा। एंड मेरे को रोक लेते थे, नहीं तो या कौन हस्बैंड ऐसे आई एग्री, आई एग्री। अलाउ करता। बट अंकल ने कभी भी नहीं, को इस बारे में कभी हमारी डिस्कशन हुई नहीं। मे बी, या मैं नहीं कहूंगी कि मेरे पे बड़ा फेथ था, मेरे को लगा गुरुजी ने उनका बस कैसे कर दिया था, मैं नहीं समझ पाई। आज तक कभी उन्होंने कभी मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं, वो बट सोचिए गुरु को ब्लेस करनी होती है आंटी, अदरवाइज हमारे दिमाग बहुत छोटे हैं। हमारे दिमाग बहुत छोटे हैं, जब तक गुरु जी की बख्शीश ना हो ना, our thing, our lotus cannot open without his grace. आई नो दिस इज So वट वाज गोइंग yes, ऑन, कि मैं so तो it's सवेरे such a 5 बजे, blessing that uncle हाँ, experienced this actually. यस। और Yeah. गुरुजी का भी बर्थडे और अंकल का भी बर्थडे 7 जुलाई, दे शेयर देयर बर्थडे। अरे वाह। तो गुरुजी कहते थे मेरा ऐदा कोई कनेक्शन है जो हम सेम डे पैदा हुए हुए हैं, पता नहीं। Yes. खुश करते थे उनको कि क्या था मेरे को, मैंने ये नहीं, वो बातों में फैमिली कमी। कनेक्शंस अभी भी तो चल ही रहे हैं। मे बी, सेलिब्रेशन। मे बी। यस तो यस यस। अब उन्होंने एक तो हमारा क्लैन चेंज कर दिया, चलो। हाँ जी, अब हाँ जी। दूसरी बात जो बड़ी अजीब होती थी, मैं चंडीगढ़ से जाती थी, एंड हमारा ना ये मतलब बिजनेस था इंटरनेशनल हम्म, ट्रेडिंग का। देर जी। वाज नो फैक्ट्री, नथिंग, कुछ भी नहीं था। तो मेरे को जब मैंने जलंधर जाना, और मैं ऐसे बैठे होती थी, कोई भी आता था ना, ये कहना ये ना सूद आंटी है या मायर आंटी है, कभी सूद कभी मायर आंटी, ये ना हम्म, दिल्ली से आई है, दिल्ली के हम्म, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बड़ी हम्म, स्टाइलिश आंटी है, और ये है वो है, जो भी करके। पर मेरी पक्की सहेली है, ही अच्छा। टू यूज वन वर्ड। यस पता नहीं यस कुछ डांट डूंट भी देते थे, मास्टर नहीं है, बिकॉज आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद किड्स। ही टू से यस। मास्टर नहीं है, बड़ी स्टाइलिश है, बड़ी मोटी सामी है, मतलब अच्छा। 4-5 वर्ड यूज करने। हाँ तो हाँ मेरे को बड़ा अजीब लगना, मैंने फिर एक दिन बड़े ही हिम्मत करके ना मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी, एक तो हाँ मैं दिल्ली से नहीं आती हूँ, मैं ना हाँ चंडीगढ़ से आती हूँ, और हाँ। दूसरा ना हमारी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरे को लगा शायद किसी ने कुछ बोल दिया, या गुरुजी को कोई गलती गलत लगी फहमी है। हो गई या है। या तो शुड आई शुड एक्सप्लेन, कि लोग हाँ सोचेंगे ये बड़ी 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 गुरुजी के पास आके छोड़ रही है। तो हाँ मतलब आई बेटर एक्सप्लेन। तो हाँ। इतनी जोर से मेरे को डांट पड़ी, चुप करके बैठ जाओ, गुरुआं दी गल नहीं टोकी दी हुंदी। ये यस। अब अब गुरुआं दी गल नहीं टोकी दी हुंदी, हम तो इतनी डांट खा के कोने में बैठ गए। उसके बाद वो जो आए यही बोले, हम चुप करके हाथ जोड़ दिया करें भी, भैया अब क्या करें, हाँ, हमको तो पता नहीं। और वही हुआ कि आप देखो, थोड़ी देर के बाद, आफ्टर दिल्ली आ टू गए। थ्री मंथ्स उन्होंने बोला जी अपनी फैक्ट्री लगाओ, और ये जो काम है इनको इसको बंद कर दो, हम्म ये जो ट्रेडिंग का काम बंद कर दो और अपनी फैक्ट्री लगाओ, और वो भी उदयपुर में। हम्म अब हमारा जो बिजनेस था बेसिकली, मैं चंडीगढ़ में थी, दिल्ली में था, या कुवैत में था, या दुबई में था, बट नथिंग लाइक उदयपुर में कुछ भी नहीं था। हम्म अब ऑल ऑफ ए सडन a न्यू प्लेस इज बीइंग मेंशन्ड बाय गुरुजी, उदयपुर। तो मैंने फिर बड़ी हिम्मत करके मैं क्या गुरुजी, एक बेटा है एक बेटी है, इतना सब कुछ आपका दिया हुआ है, क्या जरूरत है मतलब उदयपुर जाके फैक्ट्री लगाने की, आ गई तो अंकल मेरे पास रहते नहीं है, सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, अब उदयपुर होएगा तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएंगे। फिर मेरे को उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, कहते जिंदगी में ना सारा कुछ अपने लिए नहीं करीदा हुंदा, ਤੂੰ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 100-200 ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਨੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ वाह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। सोचो, मतलब वाह। गुरु जी की सोच हम सबसे बहुत आगे थी। हम लोग यस। यहाँ, हमेशा अपने लिए ना सोचो, कितनी हाँ, गहरी सीख है हाँ, इसमें।
कि तू तो वाह! खुश है, तेरे को तो सब मिल रहा है, तेरा राइट। अच्छी जॉब है, अच्छा बिज़नेस है, सब कुछ है, पर दूसरिਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ हुँ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। वो बहुत सेफ इलाका है। गुरु जी ने हुँ, 3-4 बातें मेरे को राजस्थान, उदयपुर के बारे में बोली, जो मैं हुँ, ज़रूर कोट करूँगी। गुरु हुँ, जी कहंदे हो ना बड़ा सेफ इलाका है। हुँ, सारी एक उन्होंने ना एक सर्कल बनाया। एक बार हुँ, एक मैप लेके ना, इंडिया का मैप लेके उन्होंने एक हुँ, सर्कल बनाया था, मेरे को याद है पेन से। कह रहे थे ये एरिया जो है ये सेफ है। सारी हुँ, दुनिया भी खत्म हो जाएगी ना, तो ये एरिया मेरा ब्लेस्ड रहेगा। तो जो हमारी वाह! फैक्ट्री लगवाई उन्होंने वो उसी एरिया के अंडर है। तो और उदयपुर। उदयपुर। अच्छा। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर खुद गए थे 9th अप्रैल को हुँ, वहाँ पे करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए मैंने वो 700-800 पिक्चर्स संगत देखी है। हुई थी। वो हाँ, हाँ, हाँ। देखी है ना? तो ये जी, अभी जी। अभी 9th अप्रैल को 3-4 दिन पहले हमारे घर में हर साल सत्संग होता है, इस साल जी, भी था। हम जी, वी जी। सेलिब्रेट दैट डे, यू नो। आपने बताया था कि मैं 9th तक बिज़ी हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना 9th में हमारे घर में सत्संग है, तो जी, जी। ये डे हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं अपनी तरफ से, कि नेचुरली हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि गुरुजी मुबारक दिन है। वहाँ हाँ। गए और रहे, 3-4 दिन रहे, और फिर संगत भी गई, एंड चलो वो तो गुरुजी की मेहर थी जो भी था। हाँ, हाँ। अब जो बड़ी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हमारी गुरुजी के साथ, जो हुँ, हम ज़रूर बताना चाहेंगे जी, जी। अपने उसमें, कि जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, जो हुँ, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँगी कि आज भी या किसी युग में भी हमने नहीं सोच सकते कि ऐसे, हाँ, अब राम, कृष्ण, ये उनके युग में ये सब होता होगा तो हमको पता नहीं, है ना? हुँ, तो हुँ। हमने तो गुरुजी यही भगवान देखे हैं ना एक। तो बिल्कुल, मैं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें उनके बारे में ऐसी बताऊँगी जो हुँ। हुआ, एक्चुअली में हुआ। मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर रही हूँ? नहीं, नहीं आंटी हम प्लीज़ यही यही खज़ाना तो सब सुनना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें ऐसे हुआ, आरती 3-4 इंसिडेंट, 3-4 हुए तो बहुत, पर मैं चलो 2-3 आपको सुनाती हूँ, कि जो मतलब हमारे जिसने हमारे उस टाइम भी होश उड़ा दिया, पर उस टाइम तो कम, इस टाइम हुँ, तो हम जब सोचते हैं तो हमको गूज़ बम्प्स आते हैं, कि ये हुँ, कैसे हुआ? उसमें हुँ। एक मैं हमेशा बताती हूँ, गुरुजी हमारे घर 21 में शिफ्ट हो गए, हमको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। जी। ठीक है ना? जब वो कहते थे ये दिल्ली में आते तो हमको दिल्ली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हुँ, फ्लाइट जो थी उदयपुर की वो दिल्ली से डायरेक्ट थी, तो उनको हुँ, लगा अब इन्होंने उदयपुर आना-जाना है तो हमको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और गुरुजी जी। पंचकूला से, चंडीगढ़ से हमारे घर में शिफ्ट हो गए सेक्टर 21 चंडीगढ़, ठीक है? ये अब कौन-से सन की मैं बात बता रहे हो आंटी आप? ये मैं बता रही हूँ 97, ओके, ठीक, ठीक। हुँ, 90 मतलब 95 में हम उनको जालंधर में मिले, उसके बाद वो पंचकूला आ गए। ही राइट। स्टेड देयर फॉर 1 ईयर। आहूजा आंटी थी ना, आहूजा जो डॉक्टर आहूजा, जी, जी, उनके जी, घर में जनरल रहे, जनरल आहूजा, जनरल या, आहूजा या। उनके रहे। फिर उसके बाद सेक्टर 33 में आ गए। अच्छा। सेक्टर 33 में आप रिंपल आंटी को जानते हो? बिल्कुल, ग्रेवाल। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जानते उनकी हैं। उनकी जेठानी का घर था सेक्टर 33 में। हाँ जी। 33 चंडीगढ़, फ्रॉम हुँ, पंचकूला टू चंडीगढ़ आ गए वो, वहाँ हुँ, पे ऑलमोस्ट रहे, फिर वहाँ से वो हमारे सेक्टर 21 में शिफ्ट हो गए। हुँ। ये सब कुछ हमारी आँखों के सामने हो रहा था, जी, ठीक है? जी। अब हमको दिल्ली शिफ्ट कर दिया, हमारे घर में गुरुजी रह गए, वहाँ पे उन्होंने संगत कभी नहीं करी। हुँ, इट वाज़ नॉट अ संगत, कोई भी कुछ लोगों को बुलाते थे, हुँ, मिलते थे, अपना कह रहे थे मैं इत्थे आराम करन आया हैं। हुँ, राइट। और जब ये पंचकूला में थे ना, तो जो जैसे बड़ी, अब मैं गुरुजी की सारी संगत हाई फ्लायर आती थी, पर जो हुँ, बहुत टॉप नॉच होते थे ना, जिनको लगता था गुरुजी की इनको तो मैंने बहुत अच्छे से रखना है, उनको बोलते थे चलो फिर गुरुआं दे गेस्ट हाउस। अब गुरुओं का गेस्ट हाउस कौन सा था? ये हमारा घर 21 वाला। देखो अच्छा। गुरुजी की बड़ी मेहर थी, सब हुँ, कुछ था घर में गुरुजी का दिया हुआ, ड्राइवर्स, कुक्स, हुँ, हुँ, ये हुँ, वो, तो उनको लगता था कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी बस
रियली यूज्ड टू लव हिज संगत, यस, अभी भी करते हैं। उस टाइम यस। तो उनका प्यार उमड़ उमड़ के हम लोग देख रहे होते थे, है ना। पलकों पे तो रखते थे वो अपनी संगत को, बिल्कुल पलकों सही पे रखते थे, बात। आई नो। आपके फादर का भी मैं बताऊंगी। आपके फादर का एक सत्संग मेरे सामने हुआ था, मैं अब वो भी आपको बताऊंगी। हाँ जी, बिकॉज वी जरूर। ऑल लव जनरल कपूर, वी ऑल वी ही वॉज सच एन अडोरेबल पर्सन। गुरु जी उसको बहुत पसंद करते थे, गुरु जी हाँ बहुत जी, प्यार करते थे। हाँ जी, एक्चुअली गुरु जी सारे ही आर्मी वालों को बहुत प्यार करते थे। हाँ जी, सम हाँ जी। टाइम वी यूज्ड टू फील जेलस, कि आर्मी वालों को यस, एक्चुअली एक्चुअली। यस, तो यस। चलो उधर आ गए। तो क्या होता था, मैं दिल्ली से बीच बीच में जाती थी उनको जैसे मैनेज करने के लिए घर में, कि गुरुजी का ग्रोसरीज देखाऊं, ये देखाऊं वो। तो सुधा आंटी भी काफी जाती थी मेरे साथ, सुधा आंटी ज्यादा रहती थी मेरे, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज में थे तो मैं थोड़ा कम जा पाती थी। राइट, तो राइट। हम कई बार हम दोनों होते थे। तो एक दिन की बात बताऊंगी मैं आपको। गुरुजी ना, मैंने अपने वाला जो हमारा मास्टर बेडरूम था वो गुरुजी को दिया हुआ था, और हम साथ वाले बेडरूम में मैं और सुधा आंटी होते थे। तो शाम को गुरुजी तैयार होके निकले, एकदम वाइट, प्योर वाइट चोला ऊपर से लेके नीचे तक, इतना, आप जिसको रूहानी बोलते हो ना, मेरे को वो रूप रूहानी याद आता है वर्ड। राइट, राइट, इतना राइट। करके ना और यही बोलते थे गाड़ी निकाल लो। तो हम्म, मैंने गाड़ी निकाली, एक गाड़ी हमने गुरुजी के लिए खड़ी करी हुई थी भी, चलो इन्होंने इधर उधर जाना हो। तो सुधा आंटी, मैं और हम निकले चंडीगढ़ से। दैट वाज विंटर टाइम, एक्सट्रीम विंटर। और लाइक 4 साढ़े 4 बजे थे, निकले गुरुजी, गाड़ी में बैठे। और उनका एक स्टैंडर्ड जो होता था, ही टू नेवर से कि कहाँ जाना है, हम पूछते भी नहीं थे, वो बताते भी नहीं थे। तो हम्म, गाड़ी में बैठ के मैं जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, सुधा आंटी साथ बैठी और गुरुजी पिछली सीट पे बैठ गए। तो ही टू ऑलवेज टेल मी राइट जाओ, भी हम्म, गाड़ी राइट करो, गाड़ी लेफ्ट, राइट लेफ्ट करते थे। इसके आगे कुछ नहीं बताते थे। तो करते 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 ना, हम लोगों को वो चंडीगढ़ के बहुत बाहर ले गए, लाइक 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर में भी। क्योंकि मेरे को पता, घड़ियां तो हमारे हाथ में होती हैं। दैट वाज अराउंड 6-6:30 हो गया था, घंटा 1.5 घंटा हमको निकलते निकलते शहर से बाहर ले आए। हम्म, आप मानोगे नहीं आरती, दैट वाज सच, आई मीन स्केरी सीन। डस्क yeah, टाइम, जैसे रात, और ऊपर से ठंड, और ऊपर से ऐसा विलेज, यहाँ पे एक दिया नहीं, एक हम्म, इंसान नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी शायद उस विलेज में। वहां वाह। पे वहां पे ले गए, और वहां पे मेरे को कहते गाड़ी रोक दे। हमारी आधी तो जान निकली पड़ी थी, बिकॉज अंधेरा, ऊपर से ठंड, ऊपर से इतना शहर के बाहर, हमको पता ही नहीं हम कहाँ पे हैं। अच्छा, और तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कहाँ जाना है? ना नथिंग। ना ना, वो तो बताते तो थे ही नहीं ना। राइट, राइट। चलो, हाँ, कोई फंक्शन पे जाना होता था तो पता होता था कि हाँ, उसके तब घर हाँ, जाना है। करेक्ट, 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 और करेक्ट। इस उस दिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और गाड़ी कहते रोक दो, हमने गाड़ी रोक दी। उन्होंने पिछले सी दरवाजा खोला और उतर गए। जैसे ही वो दरवाजा खुला, इट वाज स्टिंकिंग सो बैडली, बिकॉज वो कौ डंग वगैरह, ये वो सारा विलेज था। तो सारा मतलब गंदा सा था वो, कुछ कुछ भी नहीं था। उतर के चले गए। फिर हमने धीरे धीरे गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया कि यह कहाँ जा रहे हैं। ही देयर वाज ए स्मॉल हट, जो हम दूर से देखा, एक कोई हट थी, उसकी छोटी सी विंडो थी। छोटी सी विंडो में थोड़ी सी दिए की लौ जैसे नजर आती है ना, बिल्कुल। या वो भी मेरे को लगता है गुरुजी ने हमको दिखाई कि ये पता नहीं क्या सोची जा रही है, डरी जा रही हैं। तो एक छोटी सी विंडो थी, उसमें एक दिया जैसे अंदर कोई जल रहा था, और उसके अंदर वो चले गए। अब हम गाड़ी में बैठे 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 प्रे कर रहे हैं। तब हम क्या प्रे करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, भी गुरुजी ठीक ठाक आ जाए। मतलब हमको लगा या, कि लाइक वी वर रिस्पॉन्सिबल, कि हम लेके आए हैं, और ये या, कहाँ चले गए हैं, और इतनी सर्दी, कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गुरुजी को कुछ ना हो जाए, हमको थोड़े पता हाँ, था कि भगवान है। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को ना वो सोच रहे थे कि हम हाँ, गुरुजी के केयर हाँ, टेकर्स हम हैं। कुछ कर, या, सो ट्रू। तो क्या हुआ कि उसके अंदर चले गए। अब थोड़ी देर के बाद आ गए, आधे पौना पौना घंटा लगा के आ गए, गाड़ी में बैठे, फिर राइट लेफ्ट करते हुए वापस ले आए। ना हमको पता हम कहाँ गए, ना हमको पता कि हम कहाँ से वापस घर पहुंचे। घर वाह। आ गए। रात को वही बात है, 9 पता नहीं बज गए, 9:30 बज गए। फिर गुरु जी का खाना वाना होता था, खाना वाना खा के सो गए। तो
सवेरे उठे 10 साढ़े 10 उठते थे, चाय वाय लेके हम बैठ जाते थे दोनों गुरुजी के पास। तो बड़ी क्यूरियोसिटी, रात की जान तो निकली हुई थी। हमने कहा हाँ हाँ गुरुजी रात रात को ना आप तुसी ਉੱਥੇ चले गए, सानू ते बहुत डर लग्या, जे कुछ हो जाता है सानू ते संगत ने छोड़ना नहीं था। हम अपनी भाषा शुरू हो गए, लाइक हाँ जैसे नॉर्मल होता है। हाँ ਤੇ हाँ हाँ ਬੜੀ ਕੈਜੂਅਲੀ कहते नहीं नहीं वो ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਆਵਾਂ। सो ये हमारे गुरुजी का जो रूप हमने देखा I कि have मतलब goosebumps. ऐसी जगह गुरु ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ The ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ man. ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤ ਕੋਲ जाना Yeah, ਪੈਂਦਾ है। yeah, 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 ये yeah, yeah. वो एग्जाम्पल हमने आंखों से देखा कि हम लोग तो गुरुजी के आसपास घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं। वो जो आदमी एक भक्ति कर रहा था Mm. गुरुजी की, शिव जी की, कौन से रूप की, मेरे को हमको तो पता नहीं, वो जाने या गुरुजी जाने। गुरुजी Wow. उसको ब्लेस करने गए थे। इतने एक गांव में, एक हट में, यहाँ पे कुछ नहीं था। ये या गुरुजी और का रूप। आप ये देखो आंटी कि बैक देन कौन सी नेविगेशन होती थी, कौन सा जीपीएस होता था, कुछ भी नहीं होता था। कुछ भी नहीं, कुछ भी या नहीं। या सिंपल फोन जरूर हमारे को मिल गए थे, या सीधे साधे, मेरे ख्याल नोकिया के ही होंगे शायद, यस 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 है ना। यस। और उसमें क्या होता था, कुछ भी नहीं। कुछ भी बट नहीं गुरु, कुछ है। भी नहीं। नेविगेशन वाह। कहाँ से होनी। तो या ये चीज ना मेरे को अभी तक आप देती आंटी है। अंकल आंटी के बारे में बताओ, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली बहुत बार उठता है, स्पेशली नई हाँ संगत। हाँ, ये हम जब गुरुजी को पूछते थे ना, गुरुजी आप 5 साल की लड़की आती है उसको भी आंटी बोलते हो, 10 साल का लड़का आता है उसको भी अंकल बोलते हो, तो ये क्या है। तो फिर उन्होंने जो हमको बताया, मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स आपको बताऊंगी। वो कहते ये जो सब सब आप लोग सोल्स हो ना, ये सारी सोल्स हैं जो आप, मेरे मेरे लिए ये सारे सोल्स मेरे को दिखती हैं। ये सारी सोल्स पुरानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम सारे, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, वो भी पिछले जन्म का कोई ना कोई हमारे से जुड़ा हुआ है, या हमारे परिवार से या संगत से। तुम लोग सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो इसलिए मेरे लिए वो जैसे इंग्लिश में आंटी अंकल बोलते हैं, तो मैं अंकल आंटी बोलता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है 5 साल का बच्चा। मेरे लिए तो ये हो सकता है पिछले जन्म में 90 साल का था, 80 साल का था, 50 साल का था। तो गुरुजी कहते ये सारियां सोल्स है, इस करके मेरे लिए सारे अंकल आंटीज इनको मैं बुलाता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं जो बोला आपको, मतलब आई आई थिंक सो आई कुड एक्सप्लेन हाँ कि जी वो हाँ उनका जी क्या मीनिंग था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट्स क्योंकि ऑल वो अबाउट कहते द सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शंस हैं, सारियां सोल्स हैं। मेरे लिए 5 साल 50 साल या 85 साल का बंदा कुछ नहीं है, मेरे लिए सोल है जो पीछे से चलती आ रही हैं। तो इसका ये सारे मतलब तो फिजिकल एजेस हैं, हमने ये इस चोले के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि आई एम सो एंड सो, आई एम दिस मेनी हाँ इयर्स। बट गुरुजी सीज बियॉन्ड दैट, ही इज सीइंग हाँ योर सोल, नॉट योर हाँ फिजिकल बीइंग। हाँ, उनको राइट। ये था कि ये पुरानी वहां से चलती आ रही है, ये सोल वहां से है, तो उनके लिए वो सबको अंकल आंटी ये एड्रेस करते थे। बड़ी ऐसी चीजें हैं जो जैसे मैं अभी, चलो मेरे को एकदम याद आ रही है। किसी ने मेरे को अभी पूछा आपको, अच्छा मैं बताती हूँ, जब गुरुजी ने हमारी फैक्ट्री लगाई ना, आप मानोगे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बड़ी ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, उसमें कुछ बैड बिल्कुल। चीजें भी है। सारा कुछ रोजी रोजी गुरुजी के साथ नहीं होता, आपको राइट तो पता ही होगा, है ना। तो हम लोग जैसे कहते हैं हमारे कर्म काटते हैं, ये है वो है, ये सारी बातें हैं। तो मेरे को क्या हुआ कि जैसे हमारे गुरुजी की ने आइडिया दिया, फैक्ट्री का लगवाई, और मानोगे 5 साल के बाद फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ हेवायर हो गया, सारा कुछ डाउन दी ड्रेन जैसे होता है ना। वी वर वर्चुअली ऑन रोड्स। अब हर किसी के पास हमारे लिए होता था कि ये आप तो गुरुजी को इतना मानते हो, गुरुजी ने लगवाई थी, गुरुजी का आइडिया था, फिर ये कैसे हुआ। ऐसी बातें आती है ना, मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे लोग बात करते हैं ना ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मैं आपको आज, मेरे को भी अंदर से कुछ कुछ सोजी गुरुजी कभी कभी दे देते हैं। उसमें एक ना मैंने कहीं से पढ़ा कि जो अर्जुन ने एक बार कृष्ण को पूछा
कि जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए क्या करते हो? कहता, मैं उससे पहले उसके सारे रिश्ते वन बाय वन परे कर देता हूँ। हम्म। परे कर देता हूँ मीन्स के उसको अकेले कर देता हूँ। ठीक है। कहते फिर भी आदमी सोचता कोई बात नहीं, मैं अकेला रह गया, मेरे पास पैसा, शोहरत, मान सब कुछ है, मैं गुजारा कर लूंगा, फिर मैं इसका वो भी ले लेता हूँ, हम्म। फिर वो भी ले लेता हूँ। फिर हम्म। जब वो आदमी के पास कुछ नहीं रहता, फिर वो जब कहता है ना, भगवान अब तो तेरा ही आसरा है, अब तो तू ही मेरे को संभाल सकता है, फिर मैं उस आदमी को सहारा देता हूँ। दिस वी कॉल कंप्लीट सरेंडर। कि जब कोई मेरे पास कंप्लीट सरेंडर करता है, फिर मैं उसको दुनिया में उछालता हूँ। मतलब तब यू यू आर फ्लाइंग, देन गुरु जी की जीरो से ग्लोरी, हीरो। है ना। यस। ये मेरे साथ हुआ। और हम्म। उसके बाद पर ये नहीं है कि गुरुजी ने हमको ऐसे ही रखा। प्रॉब्लम आई, सब कुछ आई, हमने मेहनत करी, तीनों ने, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मैं, हमने राउंड द क्लॉक मेहनत करी। अगेन वी आर एट सच ए गुड प्लेटफॉर्म, आपको पता ही है सब कुछ। सो ये गुरुजी की बात मेरे को ना, इससे मैं एक्सप्लेन करती हूँ सबको। बड़े लोगों का ये सवाल होता है, जब हम गुरुजी के पास हैं तो हमारे साथ बुरी कैसे हो गई, है ना। बहुत बहुत आपने बहुत गहरे टॉपिक को टच किया है, बिकॉज आजकल आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। नानक दुखिया सब संसार, एवरीबडी इज बैटलिंग सम सॉर्ट ऑफ एन इशू, नोन और अननोन, एंड दिस इज अ बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। थैंक यू फॉर तो शेयरिंग दैट। सो अब ये वो है, हमारे साथ ये हुआ, सबके साथ हुआ। पर ये एक चीज है, गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसी रही, हमने अपने फेथ को ना डोलने नहीं दिया। कोई नहीं, ये गुरु जी ने 2 टाइम रोटी दी तो 2 टाइम रोटी नमक के साथ खाई, पर हमारा प्यार, हमारा फेथ गुरु जी के साथ ऐसे ही रहा। लोग बोलते रहे, हम सुनते रहे, हम सुन असली के कृपा, असली कृपा बस। वो है, असली हाँ, कृपा वो है कि जब आपका विश्वास ना डोले। विश्वास न अब फिर डोले। तो बेपैंदे के लोटे हो गए ना। जरा हाँ, लाइफ से मार पड़ी तो तुमने उलाम्बे देने शुरू कर दिए भगवान को। भगवान को लामे देने शुरू कर दिए। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, इतना गुरुजी ने सिदक दिया, इतना कुछ दिया। ये चीज मैं जरूर आज संगत को बोलना चाहूंगी कि वो कहते ना, अच्छे अच्छा है तो भी शुक्राना, नहीं अच्छा है तो भी शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना है। किसी के उसी लिए से बुरा आपका। निकलता ही नहीं आंटी, जो मर्जी, और सामने वाला जो कुछ बोली जाए तुम्हें सिर्फ प्यार ही उमड़ता है। ऐसी हाँ, ऐसी स्टेट में गुरुजी ले आते हैं। दैट इज ट्रू। हाँ, दैट इज ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल पहले तुम भी आग बिल्कुल। बबूला हो जाते थे, हाउ डेयर दिस एंड हाँ, दैट, एंड हाँ। नाउ इट डजंट मैटर, यू लाइक लव यू टू। और क्या। और हम लोग तो वी वर ऑल वेरी यंग ना, जब हम गुरुजी के साथ थे। एक तो यंग यंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही, शक्लें शुक्लें भी ठीक थी, ये वो। अभी तो भी सब बहुत ने अच्छी है बोला, आंटी। अभी भी नहीं बहुत नहीं अच्छी। नहीं। अरे आई एम टचिंग 68 नाउ, तो अभी 70 के नहीं हो नहीं, वो हम जाएंगे दिल्ली कब। में डिस्कस करेंगे, आप खाते क्या हो। कुछ नहीं खाते। हाँ, हम गुरुजी के पास बैठ के ना चाय प्रसाद करते हैं। यस चाय यस, प्रसाद, लंगर प्रसाद यही खाते हैं। चलो, आपके आपके पापा की बात सुनाती हूँ, मेरे को हाँ बड़ा जी। मन कर रहा हाँ है जी। ना। मेरे को याद है, एम्पायर स्टेट में ना हमारी बेटी की शादी थी। जी जी। हमारी बेटी की शादी हुई 2000 में, वो भी गुरुजी ने करी। वो भी पूरी पिक्चर्स हैं, एल्बम्स हैं, वीडियोस हैं कि गुरुजी सबसे पहले हर फंक्शन में आते थे और पूरा फंक्शन करने के बाद जाते थे। हम्म। तो इवन उसकी जो कार की डोली में, जिसमें कार में डोली गई, उसको भी धक्का गुरुजी ने मारा था, लाइक मेरी बेटी की वाह। बात कर रही हूँ। तो वाह। हाँ, तो हमारी ना बेटी की शादी थी 2000 में। तो गुरुजी ना कार्ड बांट रहे थे। जी फरवरी 2000 में शादी थी, तो 1999 में कार्ड्स बांट रहे थे। तो जी। आपके पापा आए पहली बार, पता नहीं दूसरी, मेरे को नहीं पता, पहली बार, पर वो खड़े थे इनके पास। तो गुरुजी ना उनको कार्ड दे रहे थे हमारी बेटी की शादी का। तो वो कहते, गुरुजी ए किदी शादी है? तो कहते ए सूद आंटी है ना, इन्हों की बेटी की शादी है। तो हम्म। मैं क्या, नहीं गुरुजी की बेटी की शादी है, जैसे अच्छा। होता है। तो हाँ हाँ। उनको लगा कि ऐसे हम, मतलब किसी की भी शादी में कैसे जा सकते हैं। राइट आपके राइट पापा राइट। का बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो गुरुजी हाँ कहते ले, मैं इनवाइट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं तो इन्हों जानदा नहीं। तो अशोका में शादी थी, तो हाँ उनको हाँ। लगा होगा ना कि 5 स्टार में शादी है, हम जाएंगे, एक नॉर्मल आदमी की दिमाग में आता है। तो गुरुजी कहते ले, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, हाँ। आई मीन
he used to really pamper everybody, you know. Yes, 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 That yes. was the first time I saw your father, you know, ਕਿ वो ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, you know. He अच्छा। was so cute. गुरु जी इतनी क्यूट बातें करते थे ना कई बार, है ना। या 2000 में मेरी बहन की भी शादी गुरुजी ने कराई, दिसंबर में। अच्छा अच्छा लेकिन वो ये हुई थी आर्मी मेस में, वहां गुरुजी आए थे। अच्छा आपको पता है, आंटी फौजियों के पास पैसा वैसा नहीं होता, सिर्फ शान होती है। शान तो शान तो इतनी होती है, पूछो नहीं। हाँ या तो गुरुजी आए थे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि उस टाइम आंटी हमें होश ही नहीं थी कि महाशिव आए हैं। हम अपने डांस में लगे हुए थे कि और हम क्या। डांस कर लें। बट इट वाज नहीं सो पर नाइस, लाइक अ, दोज वर द आप डेज। लोग आप बहुत यंग थे ना, हम हाँ इतने जी। यंग नहीं थे। हमने हाँ 3-4 साल गुरुजी का वो देख लिया था, लाइक 95 टू 2000 5 years में हमने हाँ जी। काफी कुछ देख लिया था ना। हाँ तो जी। हाँ हम जी। हाँ जी। कई बार तो उनको ऐसे ही कैजुअली लेते थे, पर कई बार वी यूज्ड टू बी इन ऑफ दैट। जब ओह गुरुजी जब तक गद्दी पे बैठे होते थे ना, वो अपने चोले में, ये या एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ या कहीं भी, तो उनका रूप बड़ा अलग होता था, तब हम भी बहुत उनसे, सारी आंटी ऐसी है ना। बातें जो टाइम हुई लेकिन समझ नहीं आई, या हमने कोई माइंड नहीं उसको पे किया। एंड 20 साल बाद वो अनफोल्ड हो रही है, या समझ आ रही है कि गुरुजी जस्ट डिडंट से दैट कैजुअली, इट हैड अ वेरी डीप मीनिंग। उस टाइम एक कान से सुना, दूसरे से बाहर, कोई असर ही नहीं। हाँ एंड यही तो टुडे। बात है। या चलो आपको एक और सुनाती हूँ ऐसे ही। जी। जी। अच्छा पता क्या होता था, मैं एक बात आजकल और बहुत मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, अभी तक जी। मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि लोग सोचते होंगे कि ये लेडीज अंदर रहती थी गुरुजी के बेडरूम में, क्योंकि वो टाइम थे ना, या गुरुओं का बड़ा अलग एक उनको अलग पर्सपेक्टिव में लिया जाता था, लोग बिल्कुल, बहुत जब मेरे को बातें भी करते। 10 बार का बोला, आई वॉज वेयर्ड आउट, आई डिडंट टॉक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट आई सेड व्हाट इज ही मेकिंग मी डू। बट अगेन, petty minds, and now Guruji is showing us that rise above this, तो आप प्लीज शेयर करो। हाँ तो हम क्या होता था जब गुरुजी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पायर स्टेट का, तो सब लोग चले जाते थे तो कुछ लोगों को गुरुजी ना अंदर ले जाते थे अपने जी। बेडरूम में। जी। गुरुजी जी। ने जैसे अपने बेड पे लेट जाना, तो 2-3 लोग, जैसे कोई आंटी अंकल उनको दबा रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कभी कभी हमारा भी नंबर लग जाता था, हम भी जी। अंदर गुरुजी के चले जाते थे। तो क्या होता था आरती, मैं आपको बताऊं कि जैसे हम गुरुजी का पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, कंधा दबा रहे हैं, तो जब तक वो गुरुजी यहाँ होते थे अर्थ पे, मतलब हमारे हमारे प्लेनेट अर्थ पे, तो उनका इतनी बॉडी सॉफ्ट होती थी, स्किन इतनी सॉफ्ट होती थी, मतलब लाइक अ बेबी, है ना, आपको तो पता ही है। जी। जी। तो जी। क्या होता था फिर उसके बाद गुरुजी ना अपने ट्रांस में, हम तो तब ये बोलते थे गुरुजी ट्रांस में चले गए, पर जी। एक्चुअली वो यूनिवर्स के भ्रमण में निकल जाते थे। हम्म। तो उस टाइम जो उनकी बॉडी हम फील करते थे, ये पत्थर की तरह हो जाती थी, वी राइट। कुडंट राइट। प्रेस इट, तो हम छोड़ देते थे। हम्म। मतलब प्रेस करते करते हमको पता लग जाता था, पहले नहीं लगता था, जैसे राइट। कुछ दिन के बाद हमको रियलाइज हुआ कि गुरुजी की जी। बॉडी बदल जाती है। जी। तो फिर हम क्या करते थे, हम चुपचाप गुम हो जाते थे, सांस भी हम्म। जोर से नहीं लेते थे, खांसी तो जी। कभी किसी को आई ही नहीं। और अच्छा। मतलब आई 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 रिमेम्बर कि पिन ड्रॉप भी क्या साइलेंस होती होगी, मतलब एकदम कि गुरुजी अब ट्रांस में चले गए, ट्रांस में नहीं जाते थे वो, हम्म। विश्व भ्रमण पे जाते थे, पूरे हम्म। आकाश पताल यहाँ वहां सारी जगह घूमने जाते थे। हमको कैसे पता लगा, नो आई टेल यू। हम्म। एक तो गुरुजी की बॉडी फील करके पता लगने लग गया था, पहली बार नहीं हम्म। पता लगा, दूसरी बार, चौथी पंजवीं बार समझ आ गई थी कि अब गुरुजी इधर नहीं है, तो हमको गुरुजी को टच नहीं करना, छोड़ देना है। फिर हम हम्म। चुप करके बैठते थे। फिर 5 बजे सुबह गुरुजी उठते थे, तो हमको हाथ जोड़ के जैसे आज्ञा दी, तो हम लोग घरों को चले जाते थे। और उस टाइम गुरुजी बहुत थके होते थे, तो हम्म। हम सोचते थे हम गुरुजी तो सो के उठे हैं, तो ये थके हुए क्यों हैं। तो हम्म। बाद में हमको पता लगा, जब थोड़ी-थोड़ी गुरुजी समझ देने लगे, या हम, हमारी ऑब्जर्वेशन भी तो थी ना कि गुरुजी ना अब यहाँ नहीं होते, गुरुजी निकल जाते हैं। क्योंकि कैसे हमको ये चीज़ भी कैसे समझ आई, अगले दिन जैसे सवेरे 10-11 बजे हम फिर पहुँच जाते थे, तो हमने कहना गुरुजी
रात को ना आप जब सो के उठे तो बड़े थके हुए थे। कहंदे लै जे महापुरुष सो जाएगा तो पर लो ना परलो जाएगी। नहीं आ जाएगी, He महापुरुष said नहीं that in सौंदे। front of me also. I remember those words, and I literally didn't understand the meaning of parlo. I said, "What is हाँ he talking हाँ, about?" परलो नहीं आ Destruction. जाएगी। परलो Yes. मीन्स के डूम्सडे, है ना, Yeah, destruction. Yeah, 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 yeah. डिस्ट्रक्शन। तो फिर हमने कहा गुरुजी फिर आप, नहीं नहीं बस नहीं, फिर उन्होंने खुद ही बताना मेरे को ना, मैंने ये देखा, मैंने बड़े आने वाले टाइम देखे, बड़े बुरे टाइम्स आ रहे हैं, भाई भाई का काटेगा, पानी Mm, ऊपर तक, कितने शहर डूब जाएंगे। आपको पता हमको कितने साल पहले गुरुजी ने बताया कि लेवल बढ़ जाएगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा। बॉम्बे का स्पेशली बोलते थे, बॉम्बे काफी हद तक मतलब डूब जाएगा। फिर और भी इवन वर्ल्ड के भी कितने शहरों के बारे में बताते थे। फिर कहते थे मैंने खून ही खून देखा है, बड़े अर्थक्वेक्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में, ये हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं। वो तो खैर चलो नॉर्मल बातें करते थे। पर जो गुरुजी रात को जब वो हम बोलते हैं कि विश्व भ्रमण जिसको बोलते हैं निकलते थे, वो जो बातें करते थे ना, वो तो हमारे को ना, हम सहम ही जाते थे। पर हमने कभी इतना भरोसा नहीं किया, इतना मतलब सीरियसली नहीं लिया उनको yeah, कि ये yeah. क्या बोल रहे हैं। Right, पर right, right. अब हमारे सामने है, हमको लगता था मतलब ठीक है बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अब वी आर सपोज टू लिसन, बट उनकी कोई बात बेसलेस नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनफैक्ट आप जानते हो कि रिंकू मेहता जो पंजाब की संगत है, जो गाने भी हाँ गाते जी, हैं, हाँ जी, हाँ स्टिंग एट जी, होम, तो वो हाँ बैसाखी के जी, लिए आए थे। तो हाँ लास्ट नाइट जी, आंटी ही शेयरिंग कि चंडीगढ़ की बात है या कहाँ की बात है, मे बी जलंधर की, कि गुरुजी ने उनको घुटने को बोला खड़े खड़े। हाँ एंड जी, उन्होंने, ही वॉज प्रीटी यंग टू, सो उन्होंने गुरुजी के पैर दबाने शुरू किए और दबाते दबाते उनका हाथ घुटनों के ऊपर चले गया, खड़े हाँ, खड़े। एंड ही इज लाइक, आई सडनली फेल्ट स्नेक्स, मुझे ऐसे अच्छा, लगा। एंड कहते मैं इतना डर गया कि मेरा छूट गया, that I हाँ, completely stopped and I हाँ, literally ran back. And Guruji didn't say a word. He just looked at him. So हाँ, गुरुजी ने जिसको जो दिखाना है ना, वो सटली दिखा देते हैं। बिल्कुल, अभी और कोई बिल्कुल। ऐसी बातें बताओ जो गुरुजी ने आपके साथ वन टू वन करी हो। हाँ, ऐसे था। अब मैं फिर गोइंग बैक टू जलंधर टाइम्स, मेरा हम्म। ना टू एंड फ्रो ही चल रहा है, कभी मैं हाँ जलंधर हाँ, में ऐसे ही बिल्कुल, लेट इट फ्लो। और कभी मैं पंचकूला और कभी दिल्ली का मेरा चल ही जा रहा है। ये ना जलंधर की बात है, हम शुरू शुरू में जब 2 महीने ही हुए थे जाने लगे थे, तो मेरे हस्बैंड ना ही वाज वेरी, आई मीन वो जो वैष्णो देवी के बहुत फॉलो करते थे, हर साल मेरे को ले जाना, और मैं जी। हर बार जाना और इतनी दुखी होके आना, वहां इतना चढ़ना पड़ता है, थक जाना और ये वो। तो ऐसे ही जब हम गुरुजी के जाने लगे तो इन्होंने बुकिंग कराई अपनी, और हम लोग जैसे, मेरे को था कि इससे पहले गुरुजी बोले कि आप मतलब परसों फिर आ जाना। मैंने कहा गुरुजी परसों ना हम लोग ना वैष्णो देवी जा रहे हैं, पहले ही बता दूं कि आप बुकिंग है। तो मैनू कहंदे उत्थे की पिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, उत्थे की पिया है, देवियां तो साडे पैरां च रुलदियां हैं, ये है वो। मेरे को ना बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड इतने भगत हैं और वो सुन रहे होंगे तो घर जाके मेरी तो आज पक्की खड़कैंती होएगी कि देख तेरे गुरुजी मेरे को मेरी वैष्णो देवी माता के लिए ऐसे बोले। पर मैंने देखा उन्होंने को सुना ही नहीं, या गुरुजी ने सुनने ही नहीं दिया। हाँ, हाँ, एनीवे, तो कहते मैं क्या, नहीं गुरुजी अंकल ना बहुत मानते हैं और मेरे को साथ ही जाना पड़ता है, मैं नहीं ना कर सकती ना ये वो। चुप कर गए। रात को जैसे 2-2:30 बजे छुट्टी होती थी, मैं घर गई अपने, जलंधर से चंडीगढ़ अपने घर गई, वहां सोई। जैसे ही सोई 3-4 बज गए थे, जैसे ही सोई तो गुरुजी को मैंने देखा कि एक पूरा जागरण हो रहा है, जैसे जागरण नहीं होता हाँ, हाँ, पंजाबियों में, कि हाँ, हाँ, पूरे लोग ऐसे बैठे हुए हैं स्टेज पे, माता का की जगह सारा श्रृंगार माता का है, सिर्फ फेस गुरुजी का है, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और पूरा जागरण हो रहा है, पूरी रात चलता रहा चलता रहा। तो सवेरे 6-7 बजे जाग खुली, तो मैंने यही अज्यूम किया कि वहां पे ये बात हो रही थी जलंधर में, तो वो चीज मेरे दिमाग में रह गई। तो मेरे को जैसे हम कहते जी, जो चीज की डिस्कशन करो वो दिमाग में रह जाती है, वो सपनों में नजर आती है, हम यही अज्यूम करते थे ना। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही नजर आया होएगा, कोई बात नहीं। अब जैसे अगले दिन फिर हम चले गए, मैंने कहा चलो गुरुजी से ने आज्ञा नहीं दी, फिर गुरुजी से आज्ञा लेके आते हैं कि जाना है। मैं तो ऐसे नहीं जाना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला।
तो मैं अभी अंदर ही गई, गुरु जी के जलंधर मंदिर में अंदर ही गई, तो कहते फिर दर्शन हो गए वैष्णो देवी दे। मतलब रात को ये सीन चल रहा है और अगले दिन मैं हम्म, गई हूँ, और गुरुजी ने मेरे को बोला फिर दर्शन करा दिए वैष्णो देवी के। जबकि मैं वैष्णो देवी की बिल्कुल भगत नहीं थी, ना तब थी ना अब हूँ। पर हम्म, दर्शन उन्होंने वैष्णो देवी में दिए, ये उनकी मर्जी है ना। हम्म। तो फिर कहते मेरे को हुन जाना वैष्णो देवी फिर। मैं कहा नहीं, और मैं नहीं गई। वाह। अंकल गए? अंकल भी नहीं, अल्ले अंकल को मैं अकेले जाने देती क्या। नहीं नहीं, फिर अंकल को भी लगा कि नहीं, अगर इतना मेरी बीवी को फेथ है, उनको दर्शन दिए और गुरुजी ने ये हाउ बताना शुरू ब्यूटीफुल। हो गए थे ना। यस। मतलब वो थोड़ी थोड़ी चीजें वो एक्सप्लेन करने शुरू हो गए थे, कि जैसे या, उन्होंने दर्शन दिए और सवेरे बता भी दिया कि मैंने रात को दर्शन दिए। तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजों के समझ आने लग गई थी, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, माइट भी बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। चाहते थे। यस, उन वही ना, जिन वो डोजेस में, इंक्रीमेंट्स में देते थे कि मैं तेको दिखाता हूँ ट्रेलर थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़े थोड़े आंटी, तो कुछ दिखाता हूँ। महासमाधि के बारे में बताओ, आपको क्या याद है? क्योंकि उस टाइम तक मैं पर्सनली कंट्री छोड़ चुकी थी, तो मेरे को हाँ मम्मी जी, पापा से जितना सुनने को मिला मैंने सुना, बट आई वांट योर पर्सपेक्टिव एज वेल। देखो वो जो टाइम था ना, मैं आपको अब बड़ी क्लियरली बताऊंगी, बड़ी मतलब ट्रूथफुली बताऊंगी। जी। उन्होंने क्या किया, जब उनका उनको तो पता ही था उनका कौन सा टाइम उन्होंने फिक्स बिल्कुल किया हुआ है। इसमें तो बिल्कुल। कोई शक नहीं था। कोई कहता जी हार्ट अटैक हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उनका टाइम था, उन्होंने उस टाइम तक जितनी संगत को ब्लेस करना था, जो फिजिकल फॉर्म में ब्लेस तो आज भी कर ही रहे हैं, पर उन्होंने मतलब अपना चोला छोड़ना था। कोई सारा ड्रामा रचा गया कि यहाँ पे एम्पायर स्टेट में उनको ये हुआ जी, फिर उनको एम्स ले गए, ये वो आपको ऐसे था। याद पर होगा आंटी, कई बार गुरुजी चलते फिरते बोल देते थे कि मैं तो डिवाइन लाइट हाँ, अपनी फाइल हाँ, खुद निकालदा, खुद बंद करदा, और हमें समझ नहीं आती थी कि विच फाइल इज ही टॉकिंग अबाउट। वो खुद ही कहते थे मैं लाइट चो आया, मैं लाइट च चले जाना है। लाइट, ना हाँ। मेरे अगे कोई, ना मेरे पीछे कोई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं नहीं, वो कहते सी साडा की है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ चले ही जाना है। साडा की है। आपको एक बात मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। ये जो गुरु जी का बड़ा मंदिर है ना, ये जब जमीन ही ली गई तो हम लोग इन्वॉल्व थे सारे। हम्म, क्योंकि ये 95 96 में ये सारा शुरू हुआ। तो लैंड ली गई, नक्शे बने। वो जो विप्पी अंकल के फादर, उन्होंने भद्रवाज मैप। अंकल। तो हम लोग जाते थे, हाँ। तो हम भारद्वाज अंकल, तो हम लोग जाया करते थे ये वो। तो तब ना थोड़ा थोड़ा मंदिर बन गया था, मेरे को याद है। वो जो एक जगह जिसको ये लोग यहाँ पे वो बोलते हैं जी गुरु जी की कुटिया। अब हमने गुरु जी को उसमें ऐसा कभी कुछ करते नहीं देखा। अब कहते हैं जी गुरु जी की कुटिया। वहां तो जेन सेट लगा था, हम भी जाते थे। अब गुरु जी अंदर जाके कुछ करते होंगे अकेले या रात को, तो हमको पता नहीं। हमने वो चीज कभी नहीं देखी। उसके बाद एक लॉन है, उसके बाद एक लॉन है ना। तो वहां जी। गुरुजी एक बार बैठे हुए थे। तो गुरुजी, एक लेडी आई, कोई पता नहीं पंजाब की थी ये वो। तो कहंदी गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ बड़ा सोना बना रहे हो, ਇਹ किन्ना सोना, ਉਹ किन्ना, जैसे नॉर्मल लेडीज बात करती। कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ संगत ਲਈ बना रहे हैं, साडी तो वो जगह है। आप मेरा हाथ देख रहे हो, ये वो जगह। मतलब इन्होंने उस जगह इशारा किया, यहाँ गुरु जी की समाधि बनी है। आ, मतलब यस। साडी ਤਾਂ ਉਹ जगह है, बाकी सारा मंदिर ਤਾਂ संगत दे ਲਈ है। अब देखो गुरु जी ने कुछ कहीं नहीं लिखा कि मेरी समाधि यहाँ बनाना, ना या। उन्होंने जगह फिक्स करी। ये अपने आप ही सब फैमिली का या जो भी डिसीजन था कि यहाँ गुरु जी के लास्ट राइट्स किए जाएं। तो गुरु जी ने उस टाइम भी उनको पता था कि ये मेरी समाधि बनेगी। मैं सामने थी जब उन्होंने कहा साडी तो वो जगह है, बाकी सारा मंदिर तो संगत दे ਲਈ है। सो बड़ी अच्छा, मैं आपको एक और ऐसी एक दो बातें बताती हूँ जिससे एक्चुअली लगेगा कि गुरुजी ने मतलब क्या करिश्मे किए, और हम हंसते ही रह गए, हम एंजॉय, हम हा हा ही करते रह गए, है ना। या मे बी गुरुजी वांटेड दैट वे। क्या हुआ कि हम ना एक बार एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो कहते हैं तब ना पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, और उमराव सिंह अंकल जानते होंगे आप, निर्मल आंटी के फादर इन लॉ। निर्मल आंटी को जानते हो, जलंधर वाली निर्मल आंटी हैं। नाम तो सुना है आंटी, फेस तो याद नहीं बिल्कुल चलो भी। कोई बात नहीं, बहुत पुरानी संगत है गुरु जी की, बहुत प्यारे, जलंधर टाइम के ही मतलब हैं। अभी भी है। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उनके फादर इन लॉ वाज पॉलिटिकल पर्सन, राइट। पंजाब के काफी बड़े लीडर थे।
तो दिल्ली में बैठे बैठे ना मेरे एम्पायर स्टेट में मेरे हस्बैंड को कहते हैं इलेक्शन आ रहा है, तो एक छोटा सा ना टोकन कोई उन्होंने ब्लेसिंग पता नहीं क्या चीज थी, आई शुड नॉट बी मेंशनिंग थोड़ा मे बी कुछ कैश था, मे बी कोई ब्लेसिंग थी। कहते ए तू ले जा ते उसको उमराव सिंह को जाई गाड़ी ले जा, बाहर गाड़ी खड़ी थी हमारी, गाड़ी ले जा और उमराव सिंह को ये मेरी तरफ से दे के आओ, बोलो गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है इलेक्शन के लिए। अब जो मेरे हस्बैंड वो कभी ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं, अगर जिंदगी में कभी उन्होंने 2-4 बार ड्राइविंग करी तो जरूर किसी ना किसी में मार के आए, या गाड़ी मार के आए या किसी में मार के आए, तो हमने एक टाइम के बाद इनकी बंद कर दी थी कि आप ड्राइवर के साथ चलाओ, या मैं चलाती थी या ड्राइवर, आप नहीं चलाओगे। अब गुरुजी इज टेलिंग हिम कि तू कार ले जा, दिल्ली और ये से देखा। जलंधर चला जा। अच्छा। आप यू ट्राई टू विजुअलाइज योर सिचुएशन कि दिल्ली से जलंधर चला जा, कार ले जा। और मैं इतना डर गई, मैंने कहा गुरुजी इनको तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ये तो लोकल भी नहीं चलाते, ये हाँ। जलंधर कैसे ले जाएंगे। और तब सिंगल रोड होती थी, डबल रोड हम्म। नहीं थी, हम्म। दिल्ली टू पंजाब सिंगल रोड थी। मैं कहा हम्म। गुरुजी ये फिर वही डांट, तू चुप करके बैठ जा, तू ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ समझ नहीं आनी, तुसी कुछ नहीं है, तुसी ये वो। पहले तो डांटा डूंटा, फिर उनको लगा भी आंटी बड़ी जेन्युइनली कंसर्न्ड है अंकल। फिर एक चीनू चीनू होता था छोटा सा गुरुजी के ना, 14-15 साल का लड़का, ऊपर नीचे नाचता रहता था हमें, गुरुजी की चाय ले जा, ये कर ले वो कर ले। उन्होंने कहते चीनू तू जा अंकल दे नाल, आंटी ਨੂੰ बड़ी चिंता हो रही है। सोचो अब चीनू क्या, ना वो ड्राइवर, ना वो कोई केयर टेकर, ना वो कुछ भी हाँ। नहीं, वो क्या हाँ। करेगा। वैसे ही हाँ। अंकल, वैसा ही वो चीनू, चीनू को बैठा दिया। अब गुरुजी ने डांट दिया, हम तो चुप करके बैठ गए। सुनने वाली बात है बड़ी, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊं। अच्छा जी, अंकल जी गाड़ी लेके तुर पड़े, हम तो वहां बैठ के वही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहे, भी ठीक ठाक पहुंच जाए। अपने तो जो मारे ना, किसी में ना मार दें किसी। तो क्या हुआ कि रात के 12 बजे फोन आया अंकल का, मोबाइल तो तब थे ही, आ गए थे। तो कहते मैं पहुंच गया हूँ गुरुजी। गुरुजी भी हाथ में फोन लेके बैठे हुए थे, वो कॉर्डलेस फोन होता था उनके पास, हाँ। 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 यस यस। है ना। तो पहुंच गया अंकल जी, मैं क्या वाह जी, आज तो अंकल ने कमाल कर दिया, यहाँ गाड़ी नहीं चलानी आती और यहाँ दिल्ली से लेके जलंधर पहुंच गए हैं। और रहना किसके घर में है, प्रीति के घर में। प्रीति आंटी को जानते हो ना, जलंधर वाली। अच्छा चलो, अब ना मैं भी गुरुजी मेरे से ना आपको बहुत पुरानी संगत का नाम ले लेके उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, है ना। यस 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 यस। है ना, निर्मल आंटी, प्रीति आंटी, ये जलंधर में गुरुजी के पिलर्स थे, आज भी हैं, है ना। कहते प्रीति के घर गुरुजी रोज सूप पीने जाते थे। अच्छा। इनफैक्ट जितनी जितनी मेरे को रेसिपीज पता है ना सूप की, वो सारी प्रीति आंटी ने बताई थी। हम भी जाते थे, हमको भी ले जाते थे, चलो प्रीति आंटी के घर रोज शाम को सूप पीने जाते थे। आ रही थी, हाँ अंकल जी। दिल्ली से जलंधर पहुंच गए, और हाँ अगले जी। दिन सवेरे चल के वापस भी 2-3-4 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। अब हाँ मेरे जी। जैसा बंदा तो फिर सरप्राइज हो गया कि ये हाँ क्या जी। हुआ, जिस आदमी को गाड़ी नहीं चलानी आती वो गुरुजी के हुक्म से चला भी गया, आ भी गया। घर और सीधे जाके मैंने कहा जलंधर, ये नहीं कि लोकली भेजा हो, सीधे हाँ आउट ऑफ सीधे स्टेट। जलंधर, या। और जलंधर टू बैक। मैंने कहा ये तो आप हमारे सामने ड्रामा करते हो, आपको तो ड्राइविंग बड़ी अच्छी आती। फिर कहते कहते मैंने कहा चलो फिर बताओ हुआ क्या। कहते मेरे को नहीं पता, मैं एम्पायर स्टेट से उठा, मैंने गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया, मेरे को याद है। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं याद कि मैं जलंधर कैसे पहुंचा, और जलंधर में मेरे को उन्होंने नाश्ता कराया, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, उसके बाद नहीं मेरे को याद मैं एम्पायर स्टेट कैसे पहुंचा हूँ। अब आप इस चीज को क्या लोगे, कैसे लोगे, बताओ आप। गुरु कृपा, बस दो लफ्ज निकलते हैं, और तो कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मतलब उनको गुरु की कैसे नजर। उड़ा के ले गए, उड़ा के वापस ले आए, और यहाँ हम उनसे लड़ रहे हैं जी आपको तो अच्छी भली ड्राइविंग आती है, आप तो हमारे साथ ड्रामा करते हो। माय गॉड। अब वाह। ऐसी ऐसी चीजें हमने जो तेरा देखी अंत है ना। किसे नहीं पाया। तेरा अंत किसे नहीं पाया। पाया, वाह। क्या बोलोगे। उसके बाद आज तक फिर वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे। या। कितने साल, 28 साल हो गए इस चीज को, हाँ। माय गॉड। चलिए आपको एक और सुनाते हैं गुरुजी हाँ का। जी। बड़ा हाँ जी। अलग अलग मैं रूप मेरे को हाँ जी। गुरुजी के याद आ रहे हैं। हाँ जी। ऐसे ही चंडीगढ़ में थे हमारे घर में जब गुरुजी,
हमारा घर क्या, वो तो गुरु जी का ही घर, गुरु जी का ही गेस्ट हाउस, गुरुओं का गेस्ट हाउस बोलते थे वो। तो यस। ऐसे ही एक दिन कहते हैं मेरे ना दांत में दर्द हो रही है, तो मेरे को ना आरआर जाना है। आप आरआर समझते हो ना, जो आरआर आर्मी वालों का हॉस्पिटल होता है। बिल्कुल, रिसर्च एंड रेफरल हमारा सेकंड होम है वो। हाँ, हाँ, सेकेंड होम होता है। तो हमारे घर से ना आरआर जो है वो चंडीगढ़ में काफी दूर है। लाइक वो पता नहीं हरियाणा ही पड़ जाता है या कोई और, मतलब चंडीगढ़ से बाहर है, मेरे को ये पता है, पंचकुला। नॉट इन। पंचकूला से थोड़ी सी आगे मनसा देवी है, पता नहीं उस इलाके में कहीं है। राइट। तो कहते मेरे को, अच्छा रात का टाइम है, ये भी 7 8 8 बजे, 8 9 बजे होंगे। तो कह रहे हैं कि मेरे दांत में दर्द है, हमने ना आरआर हॉस्पिटल चलते हैं। अब मैं सोचूं कि रात को कौन सा डेंटिस्ट होता है कि, मतलब ये कोई ऐसी सर्विसेज तो नहीं है जो इमरजेंसी में हो। तो कहते नहीं नहीं असी चलना है, चलो। हम लोग 9 बजे निकले, 10 बजे 10:30 बजे हम लोग आरआर पहुंच गए। वही बात है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, सुधा आंटी मेरे साथ बैठी हैं और ये पीछे बैठे हुए हैं। आरआर पहुंच गए, अब वहां सीधे उतरे, सीधे इमरजेंसी के अंदर। ना इनको किसी ने रोका, रात के 11 बज गए थे। ना ना वहां कोई डेंटिस्ट होता है, हमको तो समझ नहीं आई कि गुरुजी कौन से डेंटिस्ट को मिलने आए हैं। वो किसी तो को कोई ब्लेस तरीका करने था। गए होंगे। हाँ। यस, यस, यस। वो तो बाद में समझ आई। हाँ। तो किसी इमरजेंसी में कोई आदमी तड़फ रहा होगा, या किसी को ठीक करना है या मुक्ति देनी, या पता नहीं क्या करने, सीधे अंदर चले गए, किसी ने रोका भी नहीं। नहीं तो रात को हॉस्पिटल के इमरजेंसी के अंदर कोई ऐसे नहीं जा सकता। हम बाहर बिल्कुल बैठे बिल्कुल। रहे, हम बाहर बैठे रहे दोनों जाने। वो जी वही घंटे के बाद आए, तो गाड़ी में चले गए। अब कौन सा डेंटिस्ट मिला होगा हमको तो पता नहीं। या। फिर क्या हुआ जी, जब हम निकले 12 साढ़े 12 बज गए, तो हम ना पंचकूला टू चंडीगढ़ आ रहे हैं। चंडीगढ़ आपको पता है बड़ी ब्रॉड रोड्स हैं और बड़ा डिसिप्लिन वाला सिटी है। तो पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वालों ने ऐसे हाथ देख के रोका। उन्होंने देखा कि दो, आगे तो हम दो लेडीज ही नजर आ रही थी ना, गुरुजी तो पिछली सीट पे थे, लेटे हुए थे। तो उन्होंने हमको रोक लिया, उन्होंने हमको रोक लिया कि ये इतनी यंग लड़कियां, लेडीज मतलब दो, रात के 1 1:30 बजे कहाँ से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, चंडीगढ़ एंटर कर रही हैं, तो उन्होंने रोक लिया। अब मैंने तो शीशा नीचे किया, मैं ड्राइविंग सीट पे थी, बेल्ट मेरे लगी हुई थी। तो कहते जी कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा आरआर हॉस्पिटल से। ठीक है, तो कहते क्या करने गए थे। तो अब मेरे को समझ नहीं आई, इमीडिएटली आया कि गुरुजी अंकल आंटी बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे ना अंकल बीमार थे, उनको देखने गए थे। नहीं, उनको लेके गए थे, अंकल बीमार थे। अब क्या बोलूं कि गुरुजी हाँ, हैं, इतनी एग्जैक्टली। कहानी मैं क्या सुनाती। या मैं कहा या। मेरे अंकल बीमार थे, उनको लेके गए थे, कहाँ है अंकल। तो मैंने ना हाँ। ऐसे पीछे इशारा किया, वो पिछली सीट पे, पिछली सीट पे ऐसे। आप मेरा ये थंब दिख रहा है आपको, या मैंने या। ऐसे इशारा किया। बेल्ट लगी हुई थी, मुड़ी तो मैं है नहीं, मैंने कहा वहां पे है। तो वो ना पीछे, पीछे वाले शीशे से ना ऐसे ऐसे करके देख रहा है, उधर देख रहा है, फिर उधर देख रहा है। तो पता नहीं उसको क्या दिखा, मेरे को नहीं पता। थोड़ी देर के बाद कहते जाओ, अच्छा। हम आ गए, हाँ जाओ, हम आ गए। फिर वही बात, हाँ। रात को लेट हो गए थे, गुरुजी भी सो गए, हम भी सो गए। सवेरे उठ के या। मैं कहा गुरुजी, रात को तो पुलिस वालों ने हमको रोक लिया, पता नहीं कागज भी थे कि नहीं गाड़ी में, हाँ। है कोई कागज देख लेता, मेरे को तो ये भी नहीं पता था क्या था क्या नहीं था। तो हम तो रात को बड़ी बुरी हो जानी थी अगर वो पेपर पेपर चेक करने लग जाते। तो फिर कहते बड़ी बड़ी मजे से कहते, ले असी तो उन्होंने नजर ही नहीं आए, गुरुजी इज टेलिंग अस कि वो मेरे को देखने के लिए जो पीछे गए थे, तो मैं तो उनको नजर ही नहीं आया। मतलब गुरुजी गॉड, गए इट्स भी। सो फनी। कितने फिर प्यारे मैं गुरुजी। मैं कहा गुरुजी आप तो कमाल ही करते हो, आप तो गायब हो गए, हम तो नहीं हुए। ऐसे मजाक करते, ओह मैं कहा माय गुरुजी गॉड। अंदर तो उन्होंने हमको देना था। अगर अगर कहते एਵੇਂ ही, मैं उन्होंने दिमाग ही बंद करते, उन्होंने क्या जाओ। मतलब कैसे कैसे, कैसे ओह कैसे माय नजारे। गॉड। ओह माय गॉड। मजेदार मजेदार। आत्मा आंटी तृप्त नहीं हुई हमारी, लेकिन टाइम हो गया है, सो इसलिए हाँ, I'm going to wrap this up। बट इसका एक सब्सिक्वेंट सेशन, अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो इन पर्सन, अनीता आंटी, आप, मैं, जितने जितने गुरुजी अपने संगत को इन पर्सन एक करेंगे रिकॉर्ड, गुरुजी बिल्कुल की अगर करेंगे, आज्ञा, या बिल्कुल आप करेंगे। अमेरिका आना या हम दिल्ली आएंगे।
नहीं, अभी आप 26 को आ रहे हो ना, तो ठीक आप है। थोड़ा हाँ टाइम जी। निकालना हमारे ठीक घर ठीक। में, हम ओवर अ कप आंटी ऑफ मैं तो टी। लैंड करते ही, मैंने खुशबू को भी ये बोला, ऐसे लैंड करते ही फ्लाइट से मैंने गुरुजी के स्थान पे जाना है। ऐसे वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, ना मुझे टाइम का पता, ना किसी संगत को टाइम का पता है। शी से दीदी आ जाओ। कोई बात नहीं। ह, ह, क्या? जो बड़े मंदिर जाता है ना, वो क्या? हमारे घर को क्रॉस करके जाता है, जो हाँ वापस जी। आता है वो भी क्रॉस करके जाता साथ है। और साथ ही चलेंगे, जैसे गुरुजी अपना कॉन्वॉय नहीं लेकर जाते थे अपनी संगत का, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल यस चलेंगे। यस यस यस। चलो। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। मेरी सोल थैंक आपकी, गुरुजी की आभारी है कि आपने इतने कीमती पल अपने संगत के साथ, सारे श्रोतागणों के साथ शेयर किए। आई एम श्योर पता नहीं कितने लोगों को कितनी ब्लेसिंग्स और कितनी मैसेजेस मिलेंगे। सो आपका अनंतम शुक्राना आंटी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो आई लुक मच। फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। थैंक यू आरती, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए, जहाँ पे हम सबको मौका भी मिल रहा है और इंटरेक्शन बहुत हो रही शुक्राना है। टू गुरुजी आंटी। आई एम नोबडी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट हिज लिटिल पपेट, जो आपने कहा ना, जैसे गुरुजी नाचना चाहते हैं वैसे ही हम सब नाच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मे गुरुजी, शुक्रान। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी अपने रंग में हम सबको रंगे रखें और अपनी बस चरणों के कोने बस पे। बस। शुक्राना आंटी। जय थैंक